Today we'll discuss the third colligative property, depression in freezing point. In the previous video, we have described the elevation in boiling point. Today we'll discuss depression in freezing point. As the name suggests, whenever any solute is added into the solvent, there is a net decrease in its freezing point. The decrease in the freezing point is known as depression in freezing point, which is denoted as delta TF. Graphically, it can be understood very easily, just like elevation in boiling point. It is the vapor pressure and this is our temperature. At a particular temperature, say it is the room temperature, the vapor pressure of pure solvent is this one. When we decrease the temperature, means cool it, the pure solvent, its vapor pressure decreases. As we know, the vapor pressure is directly proportional to the temperature. But at a particular temperature, without further decrease in temperature, vapor pressure decreases sharply. This temperature is known as freezing point. तो freezing point क्या होता है? The temperature at which the vapor pressure decreases sharply without changing the temperature. एकदम से vapor pressure decrease होता है because the liquid state changes itself into the solid state at that temperature, and that temperature is said to be the freezing point. This graph is only for a pure solvent. When solute is added into the solvent, what happens? Its vapor pressure decreases. Now this solution is cooled or decrease the temperature, its vapor pressure decreases sharply at this point. You can see now your solution have a freezing point lower than that of the pure solvent. This decrease is known as delta TF, depression in freezing point. और बिल्कुल ठीक उसी तरह से हम ये बता सकते हैं, जैसे हमने कहा था डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM, इसी प्रकार से हम प्रूव कर सकते हैं बिल्कुल ठीक उसी तरह से इट इज इक्वल टू KFM. Where Kf is a constant known as molar depression constant. Molar depression constant, or it may also be known as cryoscopic constant. पहले जो हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में किया था वो था एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, और इसका नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो इसकी सहायता से भी हम मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं. डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी मीन्स वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास इंटू 1000 divided by weight of solvent. If all the required components are known, we can determine the molecular mass of solute easily. बस उसके लिए KF का हमें पता होना चाहिए, और KF की वैल्यू डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ
सोलवेंट, सोलवेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। जितना KF की वैल्यू ज़्यादा होगी, डेल्टा TF भी उतना ही ज़्यादा होगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, इजीली बहुत बार पूछा गया जनरली, कि कैम्फर का यूज़ सोलवेंट के रूप में जनरली किया जाता है व्हेन वी डिटरमाइन द मोलिकुलर मास बाय यूजिंग डेल्टा TF, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसका रीज़न ये है कि उसका KF जो है कैम्फर का, वो बहुत हाई होता है, ऑलमोस्ट 5.86 की बराबर होता है यूनिट्स। तो उसकी वजह से डेल्टा TF बड़ा आएगा, और जब डेल्टा TF बड़ा होगा तो उसको ऑब्जर्व करना लैब के अंदर आसान होगा। जब डेल्टा TF को आसानी से हम ऑब्जर्व कर पाएंगे तो मोलिकुलर मास को आसानी से कैलकुलेट भी कर पाएंगे। जनरली ये प्रॉपर्टीज़ बहुत छोटी होती हैं। अभी तक जो हमने तीनों प्रॉपर्टीज़ की हैं, तीसरी ये चल रही है। पहला हमने किया था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा हमने किया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा हम कर रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये बहुत बड़ी नहीं आती हैं, क्वांटिटी वाइज देखा जाए तो बहुत स्मॉल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और लैब में इनको नोट करना उतना आसान काम नहीं होता है। इसलिए इनको एग्जैगरेट करने के लिए हमें सोलवेंट बदलने का एक ऑप्शन है। दूसरा तरीका है कि हम वेट ऑफ सोल्यूट बढ़ा दें, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि वेट ऑफ सोल्यूट नहीं बढ़ा सकते। वेट ऑफ सोल्यूट बढ़ाएंगे तो सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड हो जाएगा, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के केस में वो आइडियल बिहेवियर शो नहीं करेगा, और फिर आपका डेल्टा TF से जो, या डेल्टा TB या कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो मोलिकुलर मास एक्यूरेट नहीं आएगा। तो सॉल्यूशन को तो हमें डाइल्यूट रखना जरूरी है। तो कर क्या सकते हैं हम? सोलवेंट बदल सकते हैं। इसीलिए मैंने, ध्यान दीजिए, प्रीवियस वीडियो में एक लाइन बोली थी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट एंड द नेचर ऑफ द सोलवेंट। और इसी कारण से मैंने बोला था कि ये नेचर ऑफ सोलवेंट पर भी डिपेंड करती हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं वो अलग अलग सोलवेंट्स के लिए अलग अलग होते हैं। इस प्रकार से हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका हम यूज़ भी करते हैं। जैसे हिल स्टेशन पे जब स्नोफॉल होता है तो हम कैल्शियम क्लोराइड का या सोडियम क्लोराइड का स्प्रे करते हैं। क्या उससे होता है? बोर्ड पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन आया कि सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड का स्प्रे किया जाता है रोड्स के ऊपर, सड़कों के ऊपर, टू क्लियर द स्नो। उससे क्या होगा? जो H2O आइस के रूप में है और वो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश किए हुए है, लेकिन क्योंकि वहां का टेम्परेचर कम है तो वो वापस फ्रीज होकर के क्या बना जा रहा है? सॉलिड। और सॉलिड वाला लिक्विड इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है, ब्लॉक रोड्स हो गया क्योंकि स्नोफॉल हो गया है। सॉलिड जो वाटर है स्नो के रूप में वो रोड्स के ऊपर जमा हो गया है। अब अगर हम इसके ऊपर कैल्शियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड का स्प्रे कर देंगे और जब वो पिघल करके पानी बनाएगा तो वो कैल्शियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड उसमें घुल जाएगा। अब सोल्यूट के घुलने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाएगा। यानी मान लीजिएगा कि फर्ज करें कि वहां पे हम मान के चलते हैं कि -5 या -7 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है किसी हिल स्टेशन पर, स्नोफॉल हो गया। अब स्नोफॉल हो गया, लेकिन अब हमने उसके ऊपर कैल्शियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड का छिड़काव कर दिया, तो उससे क्या होगा? वो कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड जब पानी में घुलेगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। जो पानी बर्फ बनता था 0 डिग्री सेल्सियस पर, अब वो बन जाएगा -7 डिग्री सेल्सियस। वहां का टेम्परेचर कितना है? -5। अब उसका फ्रीजिंग पॉइंट घटकर कितना हो गया है? -7। तो क्या -7 नहीं मिलने की वजह से वो लिक्विड ही नहीं रह जाएगा? लिक्विड ही रहेगा, और फिर वो दोबारा बर्फ नहीं बन पाएगा। इस प्रकार से कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का छिड़काव, इस बात पे मैं बाद में आऊंगा कि ये दो ही मैं क्यों बोल रहा हूं, यूरिया या सुक्रोज का छिड़काव हम क्यों नहीं कर रहे हैं।
या कौन सा छिड़काव ज़्यादा बेहतर है, ये हम एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर विल डिस्कस दिस पॉइंट एज वेल, कि कौन सा छिड़काव ज़्यादा आसान वो अफेक्टिव रहेगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले तो मैं ये रीज़न बता दूं कि हिल स्टेशन पर साल्ट लाइक NaCl और कैल्शियम क्लोराइड स्प्रे के रूप में यूज़ किया जाता है टू क्लियर द स्नो, टू चेक द ब्लॉक रोड्स। इसी प्रकार से आप एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, हिल स्टेशन पे जैसे बहुत ठंडे जगह होती हैं, टेम्परेचर यूजुअली -10 -12, हमारे देश में तो ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत जगह ऐसी हैं, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां यूजुअली टेम्परेचर -10 -12 रहता है। और ऐसी कंडीशन में पेट्रोल जो फ्यूल्स होते हैं, डीजल है, वो गाड़ियों की टंकी में जम सकते हैं। तो उससे बचने के लिए क्या उपाय किया जाए? पेट्रोल में या जो भी फ्यूल है गाड़ी के अंदर जो भरा गया है, उसमें हम मिलाते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। ऑफ कोर्स वहाँ पे हम नमक या कैल्शियम क्लोराइड तो नहीं मिला सकते, कोई ना कोई ऐसा सॉल्यूट मिलाना पड़ेगा जो गाड़ी के इंजन में भी एफिशिएंसी पे कोई असर ना डाले। और ऐसा एक सॉल्यूट है CH2OH, विसिनल डाइओल, CH2OH। ये एक एंटी फ्रीज का काम करता है। ये पेट्रोल को टंकी में जमने नहीं देगा और स्मूथली गाड़ी चलती रहेगी, क्योंकि उससे क्या होगा, सोलवेंट है पेट्रोल और हमने मिला दिया इथाइलिन ग्लाइकोल, तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाएगी और उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना घट जाएगा कि वहाँ पर वो अवेलेबल नहीं होगा, तो पेट्रोल और डीजल गाड़ी की टंकी में सॉलिडिफाई नहीं हो पाएगा और आपका जो पेट्रोल है वो जमेगा नहीं, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, गाड़ी स्मूथली चलती रहेगी। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि आइसक्रीम जो सेलर होता है, वो आइसक्रीम को जब अपनी रेहड़ी के अंदर जमाता है तो कभी आपने नोट किया होगा, वो सॉलिड सोडियम क्लोराइड नमक का छिड़काव करता है चारों तरफ। कुल्फी के अंदर नहीं करता, लेकिन चारों तरफ जो उसने बर्फ जमा रखी है, बर्फ तोड़ करके लगा रखी है, उसमें वो नमक डालता है। उससे पूछिएगा कभी कि वो नमक वहाँ क्यों डालता है, उससे उसको क्या फ़ायदा है, या सोचिए। और अगर कारण समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से पूछिए, थोड़ा सा खुद सोचिए। मैं एक दो प्रॉब्लम्स आपके लिए दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप पे मैं देख रहा हूँ मेरे पर्सनल नंबर पर कुछ ही बच्चे प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं आपसे कुछ ऐसी बातें ऐसे जो शेयर किया करूँगा जिसका आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप खुद मेहनत करें, थोड़ा पता लगाएं कि ऐसा क्यों किया जाता है। हमारे डेली रूटीन लाइफ में हम चारों तरफ देखते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग, और वहाँ साइंस होता है, तो उसका रीज़न सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों होता है, वो ऐसा क्यों करता है। तो उनसे पूछिए कि ऐसा क्यों करते हैं, वो आंसर नहीं कर पाएँ, आप बुक्स पढ़ें, बुक्स में भी ना मिले, समझ में ना आए, फिर आप हमसे पूछें। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट एंड द लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ओस्मोटिक प्रेशर। हाँ, एक बात मैं और बता दूं, ये जो कांस्टेंट्स होते हैं Kf और Kb, दो कांस्टेंट्स हमने यूज किए हैं, Kb एंड Kf, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट एंड मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ये किस किस चीज पर डिपेंड करते हैं? सोलवेंट के नेचर पर तो डिपेंड करते हैं। Kb इज इक्वल टू R T0 स्क्वेयर डिवाइड बाय 1000 LV। R is a universal gas constant. T0 is the boiling point of the solvent, pure solvent. LV is the latent heat of vaporization. Latent heat of vaporization per gram. ध्यान दें, LV is the latent heat of vaporization पर ग्राम। 1 ग्राम सोलवेंट को वेपोराइज करने के लिए कितनी हीट चाहिए? दैट इज LV। इसका मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जितनी ज्यादा होगी, Kb की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी, और प्योर सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा उसका Kb की वैल्यू ज्यादा होगी। और हम क्या चाहते हैं? Kb और Kf हमेशा ज्यादा हो,
क्योंकि Kb और Kf ज़्यादा होंगे तो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज़्यादा आएगी, और अगर ज़्यादा होगी तो उसको ऑब्जर्व करना आसान होगा। डेल्टा TF किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू KFM। अगर ये लेटेंट हीट पर ग्राम में न दी हुई हो, जनरली इट इज गिवन पर मोल, तो फिर हम इस फार्मूले को चेंज करेंगे, M1 RT0² डिवाइड बाय 1000 डेल्टा H ऑफ वेपोराइजेशन। बात वही है। अब ये डेल्टा H ऑफ वेपोराइजेशन क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर मोल। एक मोल सोलवेंट को वेपोराइज करने के लिए कितनी हीट चाहिए, और उसको डिवाइड करेंगे मोलिकुलर मास से, वो ऊपर चला गया तो पर ग्राम ही आ जाएगा। इसी प्रकार से KF है, इट इज इक्वल टू RT0² एंड इट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और इसी प्रकार से यहां पर क्या बन जाएगा? मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट RT0² डिवाइड बाय 1000 डेल्टा H ऑफ फ्यूजन। तो अगर आपको KF और KB निकालना है किसी सोलवेंट के लिए, तो उसका मोलिकुलर मास R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अगर ये डेल्टा H जूल में दिया हुआ है तो ऑफ कोर्स हम वैल्यू रखेंगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और अगर ये डेल्टा H कैलोरी में दिया हुआ है तो हम R की वैल्यू रखेंगे 2.0 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। R की दोनों वैल्यूज हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिट्स को देख करके वैल्यू रखेंगे। और R है, T है आपका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पे हम इसको फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे सोलवेंट का, प्योर सोलवेंट का, और यहाँ ये बॉइलिंग पॉइंट है, डेल्टा H ऑफ फ्यूजन, डेल्टा H ऑफ वेपोराइजेशन। सो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ KB एंड KF एज वेल। लास्ट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। उसको करने से पहले हम थोड़ा सा ऑस्मोसिस के बारे में स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद हम ऑस्मोटिक प्रेशर पर जाएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोसिस? Osmosis may be defined as the movement of solvent particles through a semi-permeable membrane। ये एक मेम्ब्रेन है जो केवल सोलवेंट पार्टिकल्स को परमिट करती है क्रॉस करने के लिए। सोलवेंट पार्टिकल्स कैन पास इट थ्रू एयर टू देयर, देयर टू हेयर। ये हो सकता है, सोल्यूट पार्टिकल्स इसको पार नहीं कर सकते। ऐसी मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। बायोलॉजी वाले बच्चे जानते हैं कि सभी एनिमल मेम्ब्रेन्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। उसमें से सोलवेंट पार्टिकल्स क्रॉस कर सकते हैं, सोल्यूट पार्टिकल्स आर नेवर अलाउड। आर्टिफिशियली this semi-permeable membrane can be prepared by dipping a filter paper into potassium ferrocyanide और ammonium ferrocyanide। एक ही बात है, अमोनियम फेरोसाइनाइड। अगर फिल्टर पेपर को इन दो केमिकल्स में से किसी एक में डिप करके उसको ड्राई कर लिया जाए तो आपकी SPM तैयार हो जाएगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब यहां पर एक सॉल्यूशन है जिसमें मैंने पानी के अंदर ग्लूकोज को डिसोल्व किया है। इट इज 0.1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन। यहां पर हमारे पास 0.01 मोलरिटी का ग्लूकोज का सॉल्यूशन है। तो ऑस्मोसिस क्या होती है? मूवमेंट ऑफ, ये साइड में बोल रहा हूं A एंड दिस साइड इज नोन एज B। movement of solvent particles through semi-permeable membrane from lower concentration to higher concentration, from lower concentration to higher concentration is known as osmosis, is known as osmosis।
यानी बहुत सारी बातें हैं इसमें बताने लायक। एक बार एक क्वेश्चन आया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और यहां पर एक सॉल्यूशन है। सपोज करें आपके पास एक रिएक्शन दिया हुआ है Na4 FeCN6 when reacted with FeCl3 it gives you Fe4 FeCN6 thrice plus 12 NaCl। बैलेंस करेंगे इसको तो it becomes like that, and this compound formed is Persian blue in color, Persian blue in color। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये दो कंपाउंड जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो पर्शियन ब्लू कलर का कंपाउंड बनेगा। यहां पर उन्होंने ए साइड लिखा है और इसको लिखा है 0.1 मोलर FeCl3 सॉल्यूशन। यहां पर बी साइड है और इसमें उन्होंने लिखा है 0.01 मोलर Na4 FeCN6 एक्वस सॉल्यूशन। क्वेश्चन ये था पर्शियन ब्लू कलर विल अपीयर। ऑप्शन में सुनिए क्या है, ए साइड पर्शियन ब्लू कलर दिखाई देगा ए साइड में, बी साइड में, बोथ साइड में, और फोर्थ ऑप्शन था नन ऑफ दिस साइड, ब्लू कलर विल नेवर अपीयर। अब बच्चे सोचते हैं यार ये दोनों कंपाउंड रिएक्ट करेंगे तो पर्शियन ब्लू कलर बनेगा। अब कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है, यहां 0.01 मोलर है, तो इधर से इधर जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल क्रॉस और encircle this A side, but actually the answer is blue color will appear none of the side। क्योंकि बेसिक बात आप भूल गए, मैंने कहा था ऑस्मोसिस की डेफिनेशन में मूवमेंट ऑफ सोलवेंट पार्टिकल्स। मैं मानता हूं कि मूवमेंट ऑफ सोलवेंट पार्टिकल्स होंगे, पानी के पार्टिकल्स जाएंगे फ्रॉम बी साइड लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, लेकिन पानी के इधर से इधर आने से क्या फर्क पड़ेगा? पानी थोड़े इसके साथ रिएक्ट करके पर्शियन ब्लू कलर बनाता है। वो तो तब बनेगा ना जब FeCl3 और FeCN6 रिएक्ट करेंगे। वो तो हो नहीं रहा, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, वो सोल्यूट पार्टिकल्स को क्रॉस करने ही नहीं देगी। तो आपका ब्लू कलर पर्शियन ब्लू कलर आएगा ही नहीं, क्योंकि दोनों सोल्यूट पार्टिकल्स आर सेपरेटेड बाय यूजिंग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये ट्रिकी बातें होती हैं, थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे तो मैं और बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऑस्मोसिस और देन लास्ट में ऑस्मोटिक प्रेशर कोशिश करेंगे। लास्ट वीडियो होगा ये इस चैप्टर का, और उसके बाद फिर आप, लेकिन एक शिकायत मुझे है आपसे, आपका फीडबैक मुझे नहीं मिल रहा है। आप कितना काम कर पा रहे हैं, कितनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किए, कितने में प्रॉब्लम आई। कुछ बच्चे शेयर कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इस बात को अवॉइड करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। आप टाइम निकाल करके खूब सारी प्रॉब्लम्स करें और हमारे साथ इसको शेयर भी करें कि हमने इतनी प्रॉब्लम्स कर लिए हैं, इसमें प्रॉब्लम आई है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि हम अपनी स्ट्रेटजी को और बेटर बना सकें। थैंक यू।